Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सर्वस्य चाहं इति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विदुर् वेदान्तवित् वेदविदुः वचाहम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हेमा माता जी। So we'll start our today's session. So we'll just recap. Is it Ashish Prabhuji? Hare Krishna. Yeah, Prabhuji. Yeah, Hare yeah. Krishna. I thought. Thank you. So most of you were not here, so we'll just do recap what we have seen last week. So last week, what we have seen, shloka number, first chapter, shloka number 44, where Arjuna is saying that it is so amazing that just for the greed of the kingdom, we are ready to kill our kinsmen, and by doing that, we will be incurring sins. So he's saying that, and 44, and in 45, he's saying that I don't want such a fight. He said, "Yadi mam apratikaram." So I will not do pratikar and not retaliate. I will not oppose. If they want to fight, let them fight, but I will not fight. And ashastram, he's saying, even if I am without weapons, they want to attack on me, it is okay. And we have seen that last time, that how morally or according to codes of dharma, that was wrong. But still, he's ready. He said, if they want to kill me, even that is okay. He's so much having compassion for them. So that was in 45 and 46. In 46, Sanjay is saying these words. Arjuna kept aside his bow and arrow, and he sat and he was very much depressed. So his mind was overwhelmed with grief. This is what he's saying. So here we've seen that chapter number first one is over, and we just did one shloka of chapter number 2, that is first shloka we did, where Sanjay is saying that Arjuna, while he was sitting, he was Ashrupurna Kulekshana. His eyes were full of tears, like he was so much in compassion. He was tam tata krapaya avishtam. Compassion has overtaken him over him, and he was crying. Literally, he was crying. And Vishidantam idam vakyam vacha Madhusudana. And this is what Lord said. So we had stopped here, where Lord Krishna is starting to speak. And जैसे हमने देखा पहले कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक ही श्लोक, आई थिंक नॉट इवन वन फुल श्लोक, इट वाज 1/4 श्लोका भगवान बोलते हैं. दैट वाज इन फर्स्ट चैप्टर 25, श्लोका नंबर 25 बोलते पश्येताम kuruniti. He says when he brought that chariot in between, he's saying, now you see these kurus. And after that, now here first time you can say officially Lord Krishna is speaking, but still he has not started the philosophy. तो भगवान जो यहाँ पे बोलना शुरू कर रहे हैं, तो I will just share the shloka. Just give me a second. Yeah, if you're able to see, please let me know.
Yes, Prabhuji, it's visible. Yeah. So we'll start reading. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Kutastva Kashmalam Idam. Kutastva Kashmalamidam. Vishame Samupastitham. Vishame Samupastitam. Anarya Jushtamasvargyam. Anarya Jushtamasvargyam. Akirtikaram Arjuna. Akirtikaram Arjuna. So we'll see what Lord Krishna is saying here. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy." So if we see here, first time Lord Krishna is speaking. First time Lord Krishna is speaking, and here it is said as Shri Bhagavan Uvacha. So first time Lord Krishna is speaking, and here it is Lord being addressed as Shri Bhagavan Uvacha. So till now we have seen Dhritarashtra was speaking, Sanjay was speaking, and Sanjay is speaking. So when they are saying, there says Dhritarashtra Uvacha or Sanjay Uvacha. But when Lord Krishna is saying, speaking, he is not saying as Krishna Uvacha. You can just make out the difference. He is saying Bhagavan Uvacha. And why is that? Why it is said as Shri Bhagavan Uvacha? Because he is द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो भगवान है और इसकी वजह से उनको भगवान संबोधित किया गया है उनको, और किसी को और को नहीं। मतलब जब शिव जी भी बोलते हैं या दुर्गा जी बोलती हैं या गणेश जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो कहीं पे भी नहीं आता। तो रुद्र उवाच या श्री गणपति उवाच या ब्रह्मा उवाच ऐसा कहा जाता है। ये भगवान उवाच सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। वाई? बिकॉज ही सारे जो देवताओं के देवता जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं से सारे जो हैं सारे जीव आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, और इसके लिए उनको भगवान कहा गया। ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, इसलिए भगवान कहा गया। और पराशर मुनि हैं हमारे, वो पराशर मुनि हैं, वो इसका डेफिनेशन देते हैं भगवान का। एक्चुअली सभी लोग, मतलब आजकल जो है हर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान का डेफिनेशन क्या है वो हम लोगों को समझना चाहिए। भगवान का डेफिनेशन पराशर मुनि देते हैं। वो कहते हैं कि जस्ट रिपीट दैट श्लोका, इट्स वेरी नाइस श्लोका। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इतिंगना। तो यहाँ पे पराशर मुनि भगवान का डेफिनेशन दे रहे हैं कि भगवान क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे वर्ड है, रूपवान, धनवान, तो ये सब हैं ऐसे वर्ड। तो क्यों, जैसे रूप, अगर कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम है या कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसको रूपवान कहा जाता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो धनवान कहा जाता है। लेकिन किसी उनका जो रूप है या उनका जो ऐश्वर्य है, दैट इज लिमिटेड। दे डोंट ओन द ब्यूटी और द वेल्थ ऑफ होल कॉस्मोस। उनके पास एक थोड़ा सा अंश है। लेकिन यहाँ पे भगवान किसको कहा जाता है कि ऐश्वर्य यानी ऑपुलेंस, जो इनके पास 100% हो ऑफ एवरीथिंग। फिर वीर्य यानी स्ट्रेंथ। हम लोग देखते हैं जो शक्ति है भगवान का, कितने शक्तिशाली हैं। वो जब छोटे से थे, कुछ दिनों के थे, तब उन्होंने पूतना का वध कर दिया। इतनी जो भयानक राक्षसनी थे, जो बड़े बड़े
देवी देवता लोग भी उससे डरते थे। तो वो उसको भी मतलब जैसे एक चुटकी बजाते हुए उसको मार दिया। गोवर्धन पर्वत इतना जो विशाल पर्वत था, आज हम लोग अगर वृंदावन जाते हैं तो इट हैज रिड्यूस्ड, बहुत छोटा सा है, आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय जो था उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इट्स वेरी स्मॉल। तो इतना विशाल पर्वत भी छोटा सा, लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली, मतलब दिस, ये जो उंगली है हमारी किसी काम की नहीं, हम लोग इससे कुछ भी नहीं उठा सकते। लेकिन भगवान ये दिखा रहे हैं उनका ताकत कि मैं इस उंगली, एक्चुअली पूरा बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं पूरा उंगली भी नहीं यूज किया उन्होंने, उस उंगली का टिप ऑफ द नेल, जो उनका जो नखून का जो टिप है उसके ऊपर उन्होंने उठा के रखा था। तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ। और यशः यानी फेम। तो इफ समबडी इज फेमस तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो अपने ग्रुप में फेमस हो, या अपने अपने बिल्डिंग में फेमस हो, या अपने एरिया में फेमस हो, ज्यादा से ज्यादा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने कंट्री में फेमस हो। लेकिन जैसे दूसरे लोग हॉलीवुड स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, वो मैक्सिमम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उनका फेम है। लेकिन भगवान का जो यश है दैट इज थ्रू आउट द एंटायर क्रिएशन, जितने भी यूनिवर्सेस हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, सभी में भगवान को जानते हैं। तो दैट इज भगवान। और फिर श्रीय यानी सुंदरता, इतने सुंदर हैं भगवान कि कभी कभी मतलब ऐसा एक ये आता है, वर्णन आता है कि भगवान एक बार ऐसे गुजर रहे थे और सामने एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत अच्छा रत्न से भरा हुआ एक जो वॉल था, was bedecked with jewels, तो उसमें अपना परछाई दिख गया। तो परेशान होते हैं, बोले अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये, और वो खुद भगवान उससे मोहित हो गए, मतलब इज सो ब्यूटीफुल। तो भगवान इतने सुंदर हैं, और बोलते शास्त्र में कहा गया है कि हिज ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, इज दैट ब्यूटीफुल। फिर ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रेय, और फिर ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हम लोग जानते हैं कि भगवान ने जो ज्ञान दिया, इतने सारे वेद शास्त्र दिए, इतने उपनिषद दिए, भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज नॉलेज व्हाट ही हैज गिवन। और दैट नॉलेज, दैट भगवत गीता इज नॉट रेड ओनली इन इंडिया बट इन अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, जितने भी देश हैं वहाँ पे सब लोग इसको स्टडी करने का, चाहे वो भक्त ना भी हो, लेकिन उसको स्टडी करते कि यार इसमें है क्या ऐसा नॉलेज, हम लोग को जानना चाहिए। तो दैट इज द पावर ऑफ द नॉलेज गिवन बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। फिर वैराग्य। तो वैराग्य जो है, कुछ लोग मतलब रिनंसिएशन, कुछ लोग जो है कुछ बना के छोड़ देते हैं और फिर इसकी तरफ लक्ष्य नहीं देखते कि ये मैंने कुछ किया हुआ है करके, दैट इज रिनंसिएशन। बट ये रिनंसिएशन भी भगवान में फुल है। इतना बड़ा सृष्टि, इतना सुंदर सृष्टि सब बनाया है, लेकिन एकदम छोड़ दिया उन्होंने। ही इज नॉट इवन अटैच टू इट, कह रहे ये मैंने, हम लोग तो एक छोटा सा कुछ चीज बना लेते हैं, हम लोग उससे आसक्त हो जाते हैं, पूरा जिंदगी हम दूसरों को सुनाते रहते हैं, अरे मेरा ये चीज है, मेरा वो चीज। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा सृष्टि बनाया है, बट इज नॉट अटैच टू दैट थिंग। तो ये जो छह चीजें जो हैं, ये जिससे, सॉरी 5 थिंग्स जो जिस व्यक्ति में है पूर्ण रूप से, नॉट फ्यू परसेंटेज बट 100%। तो वो 5 चीजें हैं: ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, वीर्य, स्ट्रेंथ, यश, फेम, श्रिया, ब्यूटी, देन ज्ञान एंड वैराग्य। ये पराशर मुनि इसका भगवान का डेफिनेशन है, ये जिसमें है वो भगवान है। तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान बोलते हैं, बाकी किसी को भगवान नहीं बोलते। और इसीलिए यहाँ पे भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया तो कृष्ण उवाच नहीं आया, यहाँ पे आया श्री भगवान उवाच। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। और फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भगवान सिर्फ 2 श्लोक बोलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर 5 श्लोक जो हैं अर्जुन बोलेगा उसमें। उसके बाद 2 श्लोक जो हैं वो फिर से संजय के हैं, और उसके बाद जो है फिर भगवान जो बोलना शुरू करेंगे 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक, तो ही विल गो ऑन लेंथ। और ये भगवान का जो है गीत है ये, इसके लिए इसको भगवत गीता कहा गया है इसको।
जैसे बहुत सारी गीताएं हैं, अष्टावक्र गीता है, गणेश गीता है, दुर्गा गीता है, लेकिन इसको जो है इसको भगवत गीता कहा गया, भगवान की गीता है ये। तो ये यहाँ पे है ये एक पॉइंट। और यहाँ पे तात्पर्य में भगवान का महत्व समझाते भगवान श्री प्रभुपाद जी एक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कोट करते हैं। उसमें कहा गया वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसका मतलब क्या है कि बोलते हैं कि भगवान को 3 तरीके से जाना जा सकता है, भगवान को 3 तरीके से जाना जा सकता है, दैट इज ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। तो देयर आर 3 रियलाइजेशंस। तो एक है ब्रह्मन रियलाइजेशन विच इज फर्स्ट स्टेप। वहाँ पे भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति के रूप में, मतलब देयर इज भगवान मीन्स लाइट। हम लोग जानते हैं बहुत से लोग जो हैं, बहुत से धर्म के लोग हैं, हमारे इंडिया में भी है, बाहर भी है, दे कंसिडर गॉड एज लाइट। तो वो है ब्रह्मन रियलाइजेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेप। उसके ऊपर का स्टेप है परमात्मेति, जो योगी लोग जिनको मानते हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में है और परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है और वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो सेकंड स्टेप है वो परमात्मा की स्टेप है। और उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो भागवतम बोलता है भगवान इति शब्दते। तो ये जो है सारे तत्वविदस हैं, वेदों को जो जानते हैं ये उस चीज को मानते हैं। और वो वहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल, एक एनालॉजी देते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं एक सन की एनालॉजी से। तो रात को जब हम लोग अपने रूम में होते हैं, जब सुबह का टाइम होता है, तो जैसे ही लाइट आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अरे सूर्य आ गए। हम लोग को एक्चुअली फिजिकली जाके देखना नहीं पड़ता वो क्या सही में सूर्यदेव आ गए, नहीं, जस्ट घर में लाइट आती है हम लोग समझ जाते हैं। तो ये जो ब्रह्म वाले हैं, जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं उस प्रकार, वो सिर्फ वो ब्रह्म ज्योति तक रहते हैं। फिर एक्चुअल जो दूसरा व्यक्ति है वो सन ग्लोब को देखता है। ये सूर्य मतलब सिर्फ लाइट नहीं है, एक ग्लोब है, एक छोटा सा सर्कल है, और वहां से हम लोग को लाइट मिल रहा है। तो ये सेकंड स्टेप है जो परमात्मा वाले जो योगी लोग उसको मानते हैं। और तीसरा जो है एक्चुअली उस ग्रह पे जाके वहां पे देखता है, यहाँ पे तो सन प्लेनेट पे सब कुछ है, यहाँ पे विवस्वान है, जहाँ पे हम देखेंगे भगवान कृष्ण 4थे अध्याय में बोलते हैं मैंने सन गॉड यानी विवस्वान को मैंने ये पूरा भगवत गीता सुनाया था। तो यहाँ पे किंगडम है, राजा है, प्रजा है, सारे लोग रह रहे हैं। तो दैट इज टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। तो ये जो चीज है 3 स्टेप्स में है भगवान को समझना, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और भगवान को हम लोग को जो टॉप मोस्ट है एज ए डिवोटी हम लोग को समझना चाहिए हम लोग को, नहीं तो हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और हम लोग अगर तात्पर्य में देखेंगे तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन ब्रह्मा, शिव जी और नारायण, इनमें भी वो क्वालिटीज नहीं है जो भगवान कृष्ण में है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी जब कोई भी सृष्टि नहीं थी तब ब्रह्मा जी सबसे पहले आए थे। और वो कह रहे हैं कि भगवान जो कौन है, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण, और बोलते हैं वो सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह है। वो ये नहीं कहते कि वो कोई लाइट है या वो परमात्मा है, नहीं, वो बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह यानी उनका रूप है उनका। और अनादिर आदिर गोविंदा, उनका गोविंद जो है भगवान कृष्ण, उनका अनादिर आदिर मतलब आदि से भी पहले से है वो। और सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण जो है वही है। अगर हम लोग ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, ब्रह्मा जी भी जो है भगवान विष्णु के जो नाभि से जो कमल निकलता है उसमें वो उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी के वर्ड्स को भी मानना चाहिए हम लोगों को। और ब्रह्मा जी इस बात को बोलते हैं। और प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में उन्होंने कोट किया था कि भगवान कृष्ण में 64 क्वालिटीज है। तो ये जो 64 क्वालिटीज है ये किसी में भी नहीं है, विष्णु में भी नहीं है, भगवान नारायण में भी 60 क्वालिटीज हैं।
which is almost 93.75%. और उसके बाद आते हैं शिव जी. शिव जी हैज़ 55 क्वालिटीज विच इज ऑलमोस्ट 86%. और उसके बाद आते हैं ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी हैज़ 50 क्वालिटीज विच इज ऑलमोस्ट 78, रफली 78%. तो 100% किसी में नहीं है. इट इज ओनली भगवान कृष्ण. और इसीलिए यहाँ पे उनको भगवान कहते हैं, पराशर मुनि और जो सारे वैष्णव हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो पद देते हैं उनका. और कई जगह पे भागवतम में भी उनका जो महत्व है वो दिखाया गया है कि भागवतम में एक श्लोक है, एते चाम से कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे. तो वहाँ पे भी कहा गया है कि जितने भी देवी देवता, जितने भी जो हैं, जैसे बलराम जी हैं, मत्स्य अवतार है, जितने भी मोहिनी अवतार, ये सिर्फ भगवान के सिर्फ अंश हैं. ये छोटे से कृष्णस्तु भगवान, सिर्फ भगवान जो है कृष्ण, वही कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो बहुत सी जगह पे ये इस बात का शास्त्रों में वर्णन है इसका. और दूसरा बात, यहाँ पे हम लोग इस श्लोक में जाए तो यहाँ पे कुतस्त्वातु कश्मलमिदम, भगवान यहाँ पे अर्जुन से पूछ रहे हैं कि ये मल, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर आ गया, दिस इम्प्यूरिटीज, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर आ गए. तो व्हाट इज रिफरिंग टू, तो ही इज रिफरिंग टू द नेग्लिजेंस या हिज रिलेक्टेंसी टू फाइट. बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. तो उसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कतोस्त्वा कश्मलम इदम, ये कहाँ से तुम्हारे अंदर इम्प्यूरिटीज आ गई है. और फिर वो कहते हैं अनार्य, और ये जो तुम्हारा जो वर्तन है, ये जो तुम्हारा बिहेवियर है, टोटली इट इज अनार्य. यानी हम लोग जानते हैं आर्य यानी जो सभ्य है, यानी सिविलाइज्ड लोग हैं, उनको कहा जाता है. बोला इट इज अनार्यम, ये अनार्य है ये. तो हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं चैतन्य चरण प्रभु, वो थोड़ा सा इसका और ये जो वर्ड है आर्य, इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. बोलते हैं कि इसका जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि आर्यंस जो हैं, और बहुत से जो सिर्फ गूगल पे सर्च करते हैं, उनके भी दिमाग में यही बात होगा कि आर्यन जो है वो कहीं बाहर से आए थे. तो एक्चुअली वो बोलते हैं कि ये जो यूरोपियन जो इंडोलॉजिस्ट थे या जो ये हिस्टोरियंस थे, ये उनका कंसेप्ट है. एक्चुअली आर्यन कहीं से बाहर से नहीं आए थे. जैसे हम लोग देखें, अर्जुन जो था वो भारतवर्ष में था, वो कहीं बाहर से नहीं आया था. तो वो लोग ये कंसेप्ट डालना चाहते हैं कि आर्यंस इज सम काइंड ऑफ रेस विच हैज कम आउट ऑफ इंडिया. तो एक चीज होता है, वो बोलते हैं कि सॉरी, दो चीज होती है यहाँ पे कि जो द्रविडियंस है और जो आर्यंस है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. आर्यंस बोलते हैं कि हम लोग असली भारतवासी हैं, द्रविडियंस बोलते हैं हम लोग. तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनमें निर्माण उन्होंने कर दिया, उन्होंने क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. और दूसरा ये, अगर इंडिया में कुछ अच्छा है तो इट इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया बट इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. तो दिस इज अ वेरी बैड, you can say a game which has been played by them. तो वो इस बात को हाईलाइट करते हैं. तो this concept is totally wrong. आर्यन means it is from, यहाँ हम लोग देखते हैं भगवान रामचंद्र के समय वो जो है आर्य करके पुकारते थे. तो दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ इंडिया, इट इज. और दूसरा जो है, जर्मन लोग भी जो सोचते हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग आर्यन हैं और इनको पूरा कंट्रोल दे देना चाहिए उनका. बट प्रभुपाद जी, इसका अगर हम लोग देखें डेफिनेशन आर्यन का, तो आर्य यानी वो जो वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, और सेकंड हु हैव civilization बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. तो जो अपने आध्यात्मिक रियलाइजेशन के बेसिस पे जो अपना सिविलाइजेशन रखते हैं, तो वो लोग आर्यंस हैं. तो एंड दिस इज हैपनिंग ओनली इन इंडिया. सो दिस ऑल दिस रॉन्ग मिसकंसेप्शंस जो है हमारे दिमाग में, इसको हम लोगों को पूरी तरह से इसको हटा देना है हम लोगों को. तो ये है इस श्लोक में 2.2 में. हम लोग जाते हैं अगले श्लोक में. मैं शेयर करता हूँ. टू 2.3.
क्लैब्यमास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते नैतत्त्वय् उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। ओ सन ऑफ प्रथा, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओ सन ऑफ प्रथा। तो we know प्रथा. Does anybody know who's प्रथा? कुंती जी को बोलते हैं। They will say for कुंती जी। या थैंक यू माता जी। तो कुंती महारानी को प्रथा कहा गया। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज जब कुंती भोज जो राजा थे उन्होंने उनको गोद लिया था, तो इसीलिए उनका नाम था जो पहले का नाम था प्रथा था, लेकिन कुंती भोज राजा ने उनको जब गोद ले लिया तो उनका एक नाम फिर कुंती भी पड़ा उनका। तो दैट वाज आफ्टर कुंती भोज किंग has adopted कुंती महारानी। तो वो भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे कजिन हो, मेरे भाई हो, तो तुम एक अच्छे वंश से आ रहे हो। तो हे सन ऑफ प्रथा, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस? सो और क्या बोल रहे हैं, मतलब ही इज चेस्टाइजिंग। भगवान कृष्ण जो है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। बोलते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। तो जैसे हम लास्ट इसमें देखा श्लोक में कि ये कहाँ से तुम्हारे अंदर ये इम्प्योरिटीज आ गई, तो अब लोग क्या बोल रहे हैं? क्लैब्यम, यानी क्लैब्यम यानी इम्पोर्टेंस। तो दिस इज रियली वेरी इंसल्टिंग। अगर किसी पुरुष को बोल दे कि यू आर इम्पोर्टेंट, तो हाउ वो कितना, मतलब उसका पूरा दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे तक विल बी बर्निंग विद फायर। तो अर्जुन वो सच ए ग्रेट वॉरियर, उसने मतलब ही वाज सो पावरफुल, ही वाज सो, मतलब बोलते हैं ना एकदम मैचो मैन थे एकदम। तो ऐसे व्यक्ति को बोलना कि यू आर इम्पोर्टेंट, इट वाज रियली लाइक अ स्लैप ऑन हिज फेस। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम जो है ये युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, तो इट इज लाइक बीइंग इम्पोर्टेंट। तो बोले क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, ये तुम्हारे में इम्पोर्टेंस कहाँ से आ गया है? यू डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और फिर बोलते हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो शूद्र जो तुम्हारा हृदय की दुर्बलता है इसको तुम छोड़ दो। लीव दिस पिटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड बोले त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो एक तरह से कहा जाए तो भगवान उनको मतलब एकदम स्ट्रांगली उनको कह रहे हैं कि डोंट बिहेव लाइक एन इम्पोर्टेंट, गिव अप दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड स्टैंड अप एंड फाइट। तो तुरंत जो है ये युद्ध करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं कि जैसे कोई अगर ब्राह्मण है तो ही हैज टू बिहेव लाइक ए ब्राह्मण। अगर वो वैसे बिहेव नहीं करता, ब्राह्मण है, कुल में जन्मा है, तो अगर वो शूद्र की तरह ही डजंट लाइक टू उसको भगवत गीता पाठ करना या पूजन करना ये सब अच्छा नहीं लगता, लाइक ओनली वर्क। तो दैट इज लाइक बीइंग ए ब्रह्म बंधु। ही इज नॉट ब्राह्मण बट ही इज रिलेटिव ऑफ ए ब्राह्मण। तो वैसे क्षत्रिय भी है, क्षत्रिय जो है उसका काम है युद्ध करना। हम लोग कई बार पहले क्लासेस में हम लोगों ने इस बात का रेफर किया है कि क्षत्रिय हैज टू शत त्रायते इति क्षत्रिय, जो शत से हमको बचाता है वो क्षत्रिय होता है। तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, ही हैज टू फाइट एंड फॉर हिज किंगडम हिज पीपल। अगर कोई किसी पे अगर मतलब जबरदस्ती करा तो इट इज द क्षत्रिय हु कम्स इन बिटवीन। हम लोग देखते हैं महाराज परीक्षित भागवतम में,
महाराज परीक्षित के राज में एक शूद्र था जो एक बैल को, एक गाय को, मतलब उनको मार रहा था। तो लिव ह्यूमन बींग्स, अगर क्षत्रिय ऐसे होते हैं कि अगर उनके राज्य में किसी पशु पे भी अगर कोई हिंसा करता है तो परीक्षित महाराज तुरंत तलवार निकालिए कि तू कौन है, मतलब क्यों मेरे राज्य में आके तो इनको परेशान कर रहा है। दैट इज क्षत्रिय। तो ऐसे क्षत्रिय को जो अर्जुन जैसे सो पावरफुल, जिसका गांडीव का सिर्फ मतलब बाण नहीं, लेकिन जस्ट वो जो उसका रस्सी था खींच के अगर छोड़ देते तो पूरा जो वाइब्रेशन था कई किलोमीटर तक जाता था, एंड पीपल यूज्ड टू लिटरली फियर। तो ऐसे व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बोलना इट वाज रियली बिग इंसल्ट। तो यहाँ पे उनके अंदर जो है वो एक जो फाइटिंग स्पिरिट है वो भगवान यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि जस्ट स्टैंड अप एंड फाइट यहाँ पे। तो ऑलरेडी अब तक देखा हम लोग, ये अर्जुना 4 रीजंस दे चुका है वहाँ पे कि आई डोंट वांट टू फाइट, कि मैं मेरे मन में कृपा है, कंपैशन है, फिर अगर ये लोग मर गए तो मैं इनके साथ एंजॉय करूँगा और मुझे पाप लगेगा इससे, और ये सब जो रीज़न है वो देता है। 5 रीज़न हम 4 रीज़न हम लोग देखे थे। तो भगवान कृष्णा उस किसी को भी रीजंस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला दिस इज ऑल यूजलेस, बोला ये नहीं करना है तुम्हें। तो ये बोलते हैं भगवान कृष्णा इस श्लोक में, और कह रहे हैं कि अर्जुना प्लीज स्टैंड अप एंड फाइट। तो ये है 3rd श्लोक का। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट श्लोक का। तो भगवान कृष्ण के 2 श्लोक हो गए यहाँ पे। तो नाउ अर्जुना इज स्टार्टिंग टू स्पीक। तो हम लोग देखते हैं व्हाट अर्जुना इज सेइंग। अर्जुन उवाच अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजाहार्हरिसूदन। Translation. Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? तो यहाँ पे अभी फिर से अर्जुन क्या कह रहा है कि पूजार्हाव अरिसूदना मीन्स both these people, Pitama, Bhishma and Drona, they are my respectable. So how you are expecting me to fight them? Pitama Bhishma is the one who has taken care of me. हम लोग जब छोटे बच्चे थे, when my father had expired, so it was him who has taken care of us and he has protected us. So you are asking me to fight with him? And Dronacharya is the one who has taught me. जो आज मैं हूँ, ये जो मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, पूरा फेमस bowman करके, it is because of the Dronacharya, and you are asking me to fight with him. So he's asking कि अरिसूदना। So हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो भगवान को जो संबोधन किया गया है, it is because of with some intention he has. So he is calling Arisudan to Lord Krishna. Arisudan means, Ari means enemy and Sudan means killer. बोले you are killer of enemy and you are asking me to become Bhishma Sudan. You are asking me to become Guru Sudan, Drona Sudan. So he's trying to argue. He's saying कि why are you asking me to fight with my own grandfather and my own teacher who has taught me how to fight? So this is what he's saying. And if you see Prabhupada many times put like जैसे 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु एंड एक होते हैं भौतिक गुरु। तो इवन जो one who is teaching us to play guitar or some kind of martial arts या piano, so they are also our, but they are our material, they are giving material knowledge, so they are also guru, but they are
material gurus, and one Adhyatmic Guru who is giving spiritual knowledge, like Srila Prabhupada. We are learning from him, we are taking lessons from him. So he's our Adhyatmic Guru. And the right thing Prabhupada always quotes is to take knowledge from the right source. We should not take knowledge from TV serials and newspapers. If some article is there on Lord Krishna, so they are not the right people, because they don't know the parampara, they don't have the right knowledge, they have not studied, they just came something in their mind and it's all imaginary. So that's why there are 4 authorized paramparas: Brahma, Rudra, Shri and Kumar. So these 4 paramparas are there, in where the knowledge is coming in parampara, so that has to be taken. So when if some guru who is not correct, or if is wrong, we can give up such kind of guru. And ऐसा example हम लोग देखते हैं scriptures में, that is does anybody remember किसी ने अपने गुरु को त्याग दिया हो? गुरु को छोड़ दिया आपने? ओके, तो एक है बलि महाराज। जब बलि महाराज, जब वामन देव जब उनके सामने आए थे, और एक्चुअली शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो शुक्राचार्य ने पूरा लाइफ उनको यही सिखाया, विष्णु का पूजा करना है, विष्णु का आराधना करना है, विष्णु को हमें ये देना है, वो देना है, सारा जो है ये जो हम लोग जो भी कर रहे हैं भगवान विष्णु के लिए कर रहे हैं। और फिर बाद में जब वो वामन जब बोला मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, तो शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु है, तो तुरंत जाके उसको रोका बलि महाराज को कि डोंट डू दिस। बोला ये है साक्षात विष्णु है, ये तुमसे सब कुछ ले लेगा। तो बलि महाराज ने तुरंत को रिजेक्ट किया, बोला कि पूरा लाइफ आपने मुझे सिखाया विष्णु के लिए सब कुछ करना है, आज खुद विष्णु अगर मुझसे कुछ मांगने आए, भले वो सब ले ले, तो यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। तो बोला मैं आपका त्याग करता हूँ, और इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया, और इसलिए फिर उन्होंने भगवान विष्णु को जो वामन के रूप में आए थे, उनको सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था। सो सच material gurus that can be rejected, and even if you see, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं जो द्रोणाचार्य, उन्होंने नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज दिया था उनको, सब कुछ सिखाया था, लेकिन स्टिल he was living on दुर्योधना's मेंटेनेंस। तो दुर्योधन जो था वो उनको मेंटेन कर रहा था, उनको लक्ष्मी दे रहा था, पैसे, तो जो उनका सारा आसक्ति था वो उसके वजह से था कि अगर मुझे ये नहीं मेंटेन करेगा तो मेरा क्या होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज अपोजिंग अर्जुन। तो बोलने कि ऐसे गुरु को हमें त्याग देना चाहिए, एंड वी शुड फाइट। तो दैट इज द कंसेप्ट व्हिच इज कमिंग इन दिस श्लोका। So quickly I will take one more shloka, which is the I will just share just a minute. Shloka number 5. Guru nahatva hi mahanubhavan, Guru nahatva hi mahanubhavan, Shreyo bhoktum bhaiksham apiha loke, Shreyo bhoktim bhaiksham apiha loke, Hatvartha kamanstu guru nihaiva, Atvartha kamanstu guru nihaiva, Bhunjiya bhogan rudira pradiktan, Bhunjiya bhogan rudira pratiktan. Translation: it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with
blood. तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि जस्ट यहाँ पे अर्जुन जी कह रहे हैं कि इट इज बेटर, मतलब मैं भीख मांग के मैं रह लूंगा, दूसरों को मार कर instead of killing my superiors, my guru, killing them, it is better that I beg and I live. मतलब मैं अपने गुरु को मारकर जीने से अच्छा है, इतना राज्य सब जमा करने से अच्छा है मैं भीख मांग के मैं जी लूंगा. भैक्ष्यम अपीह लोके, मतलब I don't want such kind of life because they are such a great souls. मेरे टीचर हैं ये, तो मैं इनसे मैं कैसे युद्ध करूं. तो this is what argument Arjuna is putting again here. And even if they want worldly pleasures, they want worldly gain, पैसा चाहिए, धन चाहिए उनको, और इसके वजह से वो युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे बड़े हैं, they are my superiors, I cannot fight with them. और वो कह रहे हैं कि अगर ये मारे जाते हैं तो whatever I enjoy is tainted with their blood. तो अगर मैं उनको मार के ये राज्य ले लेता हूँ तो इट इज टेंटेड विद देयर ब्लड. तो ऐसा राज्य लेके मैं क्या करूँगा. सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट अर्जुन इज पुटिंग कि ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जो अपने गुरु को मारकर मुझे लेना पड़े, और लेके भी मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि मैंने अपने गुरु का वध कर दिया. ये पाप मुझे लग जाए कि गुरु का जो था वध मैंने किया, एंड मुझे ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए. तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. एंड इवन पितामह भीष्म वहाँ पे एक जगह पे महाभारत में बोलते हैं कि भीष्म सेज एवरीबडी इज सर्वेंट ऑफ मनी, मी टू सर्वेंट ऑफ मनी. मतलब मैं भी मतलब इसका ये हूँ, इसके लिए जो है मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा. बट दैट इज जस्ट, ये हम लोग जानते हैं कि वो उनका पार्ट था, उनका लीला था, और उनको वैसे, और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने शपथ भी लिया था, भीष्म प्रतिज्ञा किया था कि मैं जो इस थ्रोन पे बैठेगा, इस सिंहासन पे बैठेगा, मैं उसके साथ रहूँगा. तो दैट इज वन थिंग कि हम लोगों को एक सीख सकते हैं अर्जुन से कि सेइंग हाउ कैन आई फाइट विद माय सुपीरियर्स. So we should never be arguing with our superiors. But if our superior is wrong, is on the wrong side, then we can reject him, we can leave him. तो ये जो है यहाँ पे अर्जुन के इस श्लोक से हम लोग सीख सकते हैं. तो जो नेक्स्ट श्लोका है 2.6, that is the fifth reason. हम लोग ने जो देखा, जो 5 रीजन, तो 4 देखा था हमें, that is fifth reason. So I will not go, we have only couple of minutes. तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. एंड 2.6 जो है हम लोग अगले हफ्ते लेते हैं हम लोग. We'll stop here, and if anybody has any questions, I'm sure Ashish Prabhu is there, everybody is here, so we'll have some questions or comments, please. हरे कृष्णा. प्रभु जी, ये लास्ट सेंटेंस जो आपने कहा कि जो लास्ट चैप्टर में लिखा था 5th में कि टीचर हु एंगेजेस इन अ एब्डोमिनेबल एक्शन हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज फिट टू बी अबेंडन. तो ये सिर्फ वही कहता है कि इनको सिर्फ अबेंडन करो, बट इट इज नॉट दैट हम उनको आर्ग्यू करके हम उनके साथ कुछ वो कर सकते. इज इट जस्ट सेइंग दैट के हमें एक्शन नहीं लेना है, बट हमको सिर्फ उनको छोड़ देना है? वेरी नाइस पॉइंट हमने पकड़ा है आशीष जी. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वी शुड अबेंडन, बट हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं इन महाभारत, इफ यू अंडरस्टैंड इन द होल द कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो है मतलब उनको सिर्फ अबेंडन करके कोई फायदा नहीं. मतलब अगर अर्जुन छोड़ दे रहे हैं, चलो ठीक है मैं उनको छोड़ देता हूँ, मेरे गुरु नहीं है, बट स्टिल
ऑन द ऑर्डर ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन के ऑर्डर पे सारे जो थे उनको पांडवों को मार देते थे उनको, they would have killed. एंड जैसे हमने पहले भी देखा कि लॉर्ड कृष्णा वांटेड टू एस्टैब्लिश धर्म, जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन ही ट्राई टू डिसरोब द्रौपदी, तो इतना मतलब एक्चुअली किसी मतलब इवन प्रोस्टिट्यूट के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी कई बार परपट में इसको मेंशन करते हैं कि इवन प्रोस्टिट्यूट कैन नॉट बी, उनके साथ जो व्यवहार उनके साथ नहीं करना। ये तो जो महारानी है द्रौपदी, उसके साथ ही व्यवहार किया, तो ऐसा जो दुष्चरित्र वाला व्यक्ति है, अगर ऐसा आदमी राजा बनेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो अधर्मी है। तो भगवान को वो अधर्म हटाना था और धर्म स्थापित करना था, इसके लिए भगवान का इच्छा था ये। तो भले अर्जुन उनको त्याग देता कि आई एम अबंडनिंग यू, यू आर नो मोर माय गुरु, बट स्टिल they would have killed, and that's why Krishna wanted, no, it is now your duty, I am telling you, you fight so we can establish dharma. So that is the point. Hare Krishna, Ashish ji. बट प्रभु जी अगर उसको रियल लाइफ में ट्रांसलेट करे तो हमको कौन बताएगा ऐसा कि हमको हमारे इनको ये मतलब आई होप यू आर गेटिंग, वी आर गोइंग थ्रू इन आवर रियल लाइफ लॉट ऑफ सच सिनेरियोज वेयर अगर हमने किसी को सपोज रोल मॉडल माना हो या किसी को हमने बहुत रिस्पेक्ट दिया हो, इट कैन बी फैमिली, फ्रेंड, हम जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमको सिर्फ अबेंडन करना है कि वहां तो ठीक है, चलो कृष्ण ने आके ही वांटेड तो सारे चले गए, ही बिकॉज ऑफ कृष्णा's डायरेक्शन, बट रियल लाइफ में मैं कैसे डील करूं इसको? या वेरी नाइस क्वेश्चन। वहां पे तो साक्षात भगवान कृष्ण थे कि मैं कह रहा हूँ तुम युद्ध करो, बट यहाँ पे कैसे समझेंगे? सो फॉर दैट एक्चुअली हम लोग को जो शास्त्र में दिया गया जो धर्म है उसका पालन करना है हम लोगों को। जी, अगर हम लोग को धर्म पता है, शास्त्र पता है कि कौन से सिचुएशन में क्या कैसे हम लोग को बिहेव करना है, तो इट विल बी क्लियर, विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो अगर ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो में भी अगर कभी होता है तो इफ ही इज गाइडिंग अस, इट इज मिसगाइडिंग अस, सो वी कैन अबेंडन हिम कि ये गलत आदमी है, ये मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहा। बट वी शुड, मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन ने अपने गुरु को मार दिया तो मैं ही मार दूंगा, नहीं, वी डोंट हैव टू डू इट, बिकॉज वहाँ पे उनका लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन था। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। इफ somebody is misguiding, ओके ठीक है, चलो, I don't want your advice, I don't take you anymore as my superior, and I have to reject you, so that can be done. अच्छा, तो उसी के अगर चैप्टर, उसी के कंटेक्स्ट में अगर चैप्टर 3 में नीचे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि सच फॉल्स मैग्नामिटी, मैग्नामिटी इज नथिंग बट वीकनेस ऑफ हार्ट, is not approved by authority, so therefore such magnanimity or so-called non-violence should be given up by person like Arjuna under direct guidance of Krishna. So generosity of heart, should not be taken as a weakness. जैसे अभी हमने बोला कि हम abandon कर दे, that means it is a generosity of our heart कि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम सिर्फ abandon कर रहे। बट वहाँ ऊपर पैराग्राफ में बोला कि it should not be also taken as a weakness of heart, मतलब हमारा वीकनेस ऑफ हार्ट शुड नॉट बी अ पॉइंट कि हम लोग हमको सप्रेस करते ही जाए, राइट? या करेक्ट, वेरी नाइस पॉइंट आशीष जी। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो अगर अर्जुन का केस स्टडी करें हम लोग, तो अर्जुन का वीकनेस ऑफ हार्ट जो था, इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्र, उसका मटेरियल अटैचमेंट था, अरे ये मेरे गुरु हैं, अरे ये मेरे दादाजी हैं। बट हायर कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं हम लोग, तो जो धर्म के बेसिस पे इट वाज रॉन्ग। दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वीकनेस ऑफ हार्ट था उनका, जो मैग्नेटिज्म, उसको अर्जुन को लग रहा था कि आई एम कंपैशनेट, मैं कृपा कर रहा हूँ, बट दैट वाज जस्ट वीकनेस ऑफ हिज हार्ट, बिकॉज ऑफ हिज मटेरियल अटैचमेंट ही वाज थिंकिंग। लेकिन असली चीज जो है कि दैट इज हम लोगों को हमारा अटैचमेंट मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा द बेसिस ऑफ शास्त्र। वो हम लोग जब प्रभु जी ह्यूमन बीइंग है तो मटेरियल अटैचमेंट तो होना ही है, इट इज, वी विल नेवर बी डिवॉइड ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, बिकॉज
वो मटेरियल अटैचमेंट भी कहीं से भगवान ने ही हमको दिया है। उसके पहले वाले चैप्टर में अगर हम सेकंड चैप्टर में पढ़े तो वहां लिखा है देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फेमस, very learned and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength entirely. Only Krishna can claim this. मतलब अगर ये सब मेरे में होता तो मैं ही भगवान हो जाता, राइट? तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, तो मुझ में मटीरियल अटैचमेंट तो रहना ही है। मटीरियल अटैचमेंट के बिगर तो मैं उस दिशा में जा सकता हूँ, बट मैं वो कभी इसको अपने आप से अलग नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने अलग कर दिया तो मैं कृष्ण का रूप ले लूंगा, फिर तो मैं भगवान हो गया। जहां पे यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि ओनली कृष्णा कैन क्लेम दिस बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा और नारायण कैन पोजेस ओपुलेंसेस एज फुल्ली एज कृष्णा। तो ये दोनों मुझे कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहे कि मटीरियल अटैचमेंट तो ह्यूमन बीइंग में रहना ही है। भगवान ने ही दिल दिया है, भगवान ने ही सेंटिमेंट्स दिए, भगवान ने ही इमोशन बनाया। जब भगवान ने ही आदमी को बनाया तो ये सारे भगवान के देन के थ्रू ही आए हुए। या करेक्ट आशीष जी, बहुत अच्छा आपने कहा। मटेरियल अटैचमेंट्स जो हैं ये भगवान ने नहीं दिया है हम लोगों को। इट इज वी हैव अटैचमेंट टू समबडी। जैसे शास्त्र में अगर दिया गया, अगर हम लोग देखें आज मुझे अटैचमेंट है, मटेरियल अटैचमेंट अपने वाइफ से है, अपने बच्चे से है, बट इफ यू सी अब 50 साल के बाद जब हम लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे तो वी विल हैव अनदर सेट ऑफ फैमिली। जब अगला जन्म होगा या पिछले जन्म में जो हमारे भी बच्चे हैं वो कहाँ हैं, वो आज हमको पता भी चल जाए, विल नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू देम। दैट मीन्स इट इज मटीरियल। क्योंकि मैं इस बॉडी में हूँ, आज मैं इस गोपी मनोहर के देह में हूँ और ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए मेरा अटैचमेंट है। दैट्स व्हाई इट इज मटीरियल। व्हेन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली उस मटीरियल अटैचमेंट को आप स्पिरिचुअल इसमें कन्वर्ट करो कि ये जो है ये भगवान ने मुझे दिए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। माई वाइफ इज अ गुड वैष्णवी and she is here to help me in to guide me or to assist me in Krishna Bhakti. मेरे बच्चे जो हैं these are nice Vaishnavas who are helping me in my Krishna Bhakti. But if they are pulling away from Krishna Bhakti, then that attachment is material. तो वो नहीं होना चाहिए। और ये भगवान नहीं देते, ये हम लोग अपने माइंड से जो है अपना एक बना लेते हैं on the basis of our ओन कॉन्कॉक्शंस। ये जो है ये मेरा है, ये, और इसके लिए शास्त्र में कहा गया ना अहम ममेति, ये अहम और ममेति जो है ये मेरा 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 ममता जो है उसको छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। पर अगर भगवान की भक्ति के लिए मैं अगर वाइफ और बच्चे को भी इग्नोर करूँ तो वो भी सही नहीं है, राइट? तो फिर मैंने मनुष्य जीवन लिया ही क्यों है? तो फिर मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई मटीरियल जीवन में मुझे स्टार्टिंग से ही संन्यास लेके भगवान भक्ति में जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आशीष जी। अगर हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, अभी उनका रिसेंटली उनका डिसअपीयरेंस डे था, वो गृहस्थ थे और उनके ऑलमोस्ट आई थिंक 7 बच्चे थे उनके। ही हैड 7 किड्स। हम लोग तो क्या आज 1 या 2 होता है, बट ही हैड 7 किड्स एंड स्टिल ही इज द आचार्य। हमारे आचार्य के उसमें आता है। श्रील प्रभुपाद जी वाज अ गृहस्थ। इसका मतलब हम भक्ति करना मतलब ये नहीं कि मुझे बीवी बच्चे छोड़ के, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा किया है कि वी डजंट हैव टू लीव आवर फैमिली, वी डोंट हैव टू इग्नोर। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पूरा करना है, लेकिन वो बीवी बच्चे के चक्कर में मैं भक्ति छोड़ दूं, दैट बिकम्स एन मटेरियल अटैचमेंट। वो नहीं करना है हम लोगों को, बिकॉज दे आर पुलिंग अवे अस फ्रॉम लॉर्ड। हमारा असली जो मनुष्य देह हमको किस लिए मिला है? जो बीवी बच्चों का पालन करने के लिए नहीं मिला। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अवर ड्यूटी, वी हैव टू डू। बट असली जो मनुष्य देह मिला है हम लोगों को भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए। जैसे शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। तो अगर हम लोग वही आहार निद्रा भय मैथुन, बीवी बच्चों का पालन करना, मैथुन करना, ये सब तो जानवर भी कर रहे हैं, तो फिर हमको मनुष्य देह का क्या उपयोग है हम लोगों को? तो दैट डजंट मीन कि हम लोग शास्त्र समझ गए भक्ति करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को सब कुछ छोड़ देना है और हिमालय चले जाना। नहीं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए, अपना जो बिजनेस है करते हुए, अपना जॉब करते हुए,
अपना सारे फैमिली को देखना है और अपना भक्ति भी करना है. It doesn't have to ना leave our family and go away. Hare Krishna. Hare Krishna. I hope I was able to address. Yeah, you got the point, Ashish ji. हाँ, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ प्रभु जी. थोड़ा सा. नहीं, it is difficult, प्रभु. It is not very easy to digest. क्योंकि जब हम लोग जब philosophy जब समझने का प्रयास करते हैं तो there are lot of things which is undigestible. कि ऐसे कैसे हो सकता है. बट शास्त्र के बेसिस पे हम लोग जब धीरे धीरे जब सुनते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे वो अपना जो है अपने हार्ट में उतरता रहेगा. तो हम लोग को बिल्कुल भी फैमिली छोड़ने का जरूरत नहीं. जैसे मैं हूँ अभी इतने साल से आई एम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस. मैं कभी नहीं बोलता मैं सब छोड़ के मैं वृंदावन जा रहा हूँ या हिमालय जा रहा हूँ. मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ. मेरे बच्चों का एजुकेशन देखना है, उनका शादी देखना है, सब करना है. वंस दैट इज ओवर, फिर भी मैं उनका फिर मेरे बच्चे का मेरे पोते का क्या हो गया, बच्चे को बच्चा हुआ कि नहीं, वो सब नहीं करना है. अपना बच्चे है, अपना हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा. यस, अब भगवान भक्ति में लगे. फिर वो करते भी आज भी लोग हम लोग देखते हैं 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, लेकिन अभी भी घर में पड़े हैं एंड दे हैव मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा पोता. दैट इज मटेरियल अटैचमेंट. दैट वी शुड नॉट have. We have to do our responsibilities. We don't have to get attached to them. I hope now I think it makes some sense. Yeah. But without attachment, नहीं, without वो मैंने फर्स्ट चैप्टर तो लास्ट सैटरडे को मिस किया था, बट उसमें जो लास्ट पॉइंट था ना, रियलाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन वर्क्स विदाउट अटैचमेंट, फ्रूटिटिव रिजल्ट्स. ये बहुत डिफिकल्ट है. कुछ करो विदाउट अ फ्रूटिटिव रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन. आई मीन वो स्टेज पे पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी समझदारी because Vaji Mataji is saying something. No, I'm just saying we have to take several lives to actually realize that. But I believe, it is like this is a starting point for us to understand that we have to give up attachment, and the goal is to give up material attachment. Because as long as we have our senses, it has to be attached somewhere, but it doesn't have to be in material. It has to be in spiritual. And also, I believe, but it's very difficult, Mataji. It is very difficult. But Ashiji, slowly, right? I think there are certain things that you can, slowly start giving up. It's not going to happen overnight. As I said, it's probably going to take janma after janma. But it's up to us, right? To what extent? Yeah, because there are so many things. Slowly, if you see, we are so embroiled in this material world, but slowly we start giving up and start I don't know, putting our attention into spirituality. I think it is possible. And I think what Prabhuji said was, it is like once the kids are that's a constant struggle that all of us have, right? But somewhere we have to draw the line and say it's their life. Then we have to progress in our life, and what do we need to do? We don't have to, that attachment will be there, but slowly I think, in several aspects we can withdraw ourselves. And then I feel because of that, because of I think what Prabhuji mentioned about, whatever spiritual progress you make in the next janma, we probably kind of start at a higher level. So we will not have so much, maybe, better progress in terms of giving up those, the material attachments then. So it's not a one-day process. Yeah. I just wanted to extend this thing. Let's say, like what Ashish Prabhu is saying, it is very difficult. And why it is difficult? Because not in this 30-40 years, not in this life, but past many janmas we are doing that. We are just taking care of having that attachment. So that attachment which we are having for million of lifetimes, it is very difficult to break. It is not just like a snap of our fingers and we learn Bhagavad Gita and tomorrow we'll see. No, it will be needing time. And like what Vaji Mataji said, it's very true. It will sometimes, it may take many lifetimes. It is difficult, but at least my point is we have to understand what is right, what is wrong. You may able to follow it or not is a different thing.
at least we should understand, okay, this is the thing, this is correct and this is wrong. And if we understand that, then at least we can start taking steps towards that. It may be 0.01%, but at least we should understand, we should start making progress towards that. Then what we are learning makes some sense. If we don't, if we learn and we don't want to make progress, then it is futile. And also, what other point you said, like it is very difficult. Also, the case of Arjuna is the same thing. Arjuna is also finding it very difficult. How I am going to fight? He's ready to die. He's ready to beg. He said, "I am beg and live, but I don't want." For Kshatriya, begging is the most insulting thing. But he's ready to do that. And this is where Krishna is saying no. And if we go in further in second chapter, there is very nice shloka which everybody knows. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. You have the right to do karma, but you don't have the right on that fruits. So we should not do that. This is, we all know, कर्म पे अधिकार, लेकिन उसके जो फल है उस पे अधिकार नहीं. We should not do that. And it is difficult, but slowly when we get into bhakti, we understand shastras, we understand Bhagavad Gita, we understand philosophy, then it will start digesting slowly, as you said. Yeah, maybe right. Yeah. Okay, so I think we'll stop here. It was a very nice session with a wonderful question and answer session. I really miss Ashish Prabhu whenever he is not here, because he puts so intriguing questions, and it's more today life questions. So this is he connects it to, and this is what should happen. Like, we should learn philosophy and we should relate to our current scenario. So this is very nice aspect what Ashish Prabhu has. So thank you, Ashish Prabhuji, for that. So we'll see. We'll meet next week, 11:30 on Saturday. Hare Krishna. Thank you very Hare much. Krishna. Thank you, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. सिंधुभ्य विचार पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता यथारूप की जय. हरे कृष्ण. Thank you everybody. Hare Krishna.